जो टॉपिक था क्या था, जो रहमत की दरवाजा में दाखिल होना व रहमत का, और नमाज में जिनके पास जो नियामत वाले हैं उन्हीं की सिरात पर चलने का मतलब है सिरात मुस्तकीम। बस उसी कैसे नमाजी होना है शायरी की तौर से और कलामुल्लाह की तौर से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बस मुलाज़ा फरमाइएगा। सजदा उसी का नाम है, हम लोग तो जहां जहां सजदा करते हैं, अरे सजदा उसी का नाम है जब इमामुल मुत्तकीन हो सामने। इमामुल मुत्तकीन है कौन? इमाम तबरानी मुजम्मुल शगीर एवं मुस्तदरक अला शाहीन हकीम निशापुरी हदीस को कोट किया है। क्या? अन अब्दुल्लाह इब्न आकिम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इन्नल्लाह तआला औहा इलैया फी अलीइन सलासा अशिया लैलत उसरिया बि अन्नहु सय्यिदुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलिन। कल मेराज रात गुजर गई, आज उसी की मेराज के बारे में एक हदीस गौर फरमाइए। अब्दुल्लाह इब्न आकिम रदियल्लाहु अन्हु तो मरवी है क्या? नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद করছেন আমি মেরাজ রজনীতে মেরাজ রাতেতে সফর কালে আল্লাহ তাআলা আমাকে আলীর সম্পর্কে তিনটি টপিক শোনাচ্ছে। জোরে বলেন। হ্যাঁ বাংলায় বলছি তো, জোরে বলেন। বাংলায় বলছি, আরো বাংলা করতে পারবো না। ঠিক আছে, হিন্দি আর বলবো না, বাংলায় বলছি। জোরে বলেন। কি বলেন? সুবহানাল্লাহ। আমি কত জোরে বললাম, মেদিনীপুরের লোকের সঙ্গে হিংসা করে আওয়াজ জোরে হচ্ছে না। নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ করছেন। সেই মেরাজ রাতে সফরকালে কে ওয়াজ করবেন? এখন আমার ওয়াজ শুনছেন, মদিনাতে নবী পাকের ওয়াজ শুনেছেন, বিভিন্ন জায়গাতে উলামা ইকরামদের ওয়াজ শুনেন, অনেক মুকাররির। মেরাজ রাতে আল্লাহ খুদ নিজেই মুকাররির। জোরে বলে। আচ্ছা, আল্লাহ পাকের জবান আছে? আছে না নেই? আছে। আল্লাহ বলতে পারে? বলতে বলতে মুহাম্মদের জবান ধান দিল কেন? আল্লাহ একবারও নিজ জবানে বলেনি, যা বলে সব মুহাম্মদের জবানে বলেছে। তাহলে মুহাম্মদের জবান দিয়ে আল্লাহ তার বান্দার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আর মুহাম্মদ যখন মেরাজে গেলেন, আল্লাহ মুহাম্মদকে যখন শোনাচ্ছেন কার জবান দিয়ে? হায় 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 হায়। নবী মুস্তাফা জিজ্ঞেস করছেন, এই আওয়াজটা জানি পহচানি, আপনি কার জবানে কথা বলছেন আল্লাহ? আমরাস্তারি কিতাবটা পড়ে দেখেন, ইয়া নবীল মাওয়াত্তাত কিতাব পড়ে দেখুন, হানফি মাযহাবের বড় মুহাদ্দিস জি কাওকাবে দুররি, এও হানফি মাযহাবের আবু সালেহ কিতাবগুলো পড়ে দেখুন, আশ্চর্য হয়ে যাবে। নবী জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কার জবানে কথা বলছেন? বলে, তোমার অন্তরে কার মোহাম্মত বেশি আছে? বলে, আমার অন্তরে আলীর মোহাম্মত। হে রাসূল, আমি তোমার দিলকে দেখে নিয়েছি, তোমার অন্তরে কে আছে বেশি? দেখলাম আলীর মোহাম্মত সবথেকে বেশি। তার মানে তুমি আলীকে বেশি মোহাম্মত করো। তা আমিও দেখলাম যে যাকে আমার রাসূল বেশি ভালোবাসে, আমি তার জবানে কথা বলবো, তাই আমি আলীর জবানে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তো নবী মুস্তাফাকে আল্লাহ পাক বললেন, হে আমার নবী, আমি আলীর সম্পর্কে তিনটি ওসিয়ত করছি। ইমাম তাবরানী মুস্তাদরাক হাকিম আলা শাইন নিসাপুরি দুটো কিতাব থেকে হাওয়ালা দিলাম। পেজ নাম্বার, হাদিস নাম্বার যদি চাইবেন দরকার হয় পাঠিয়ে দেব। যে দলিলগুলো দিয়ে গেছি, আমি কিতাবের নাম বলেছি, কোন হাদিস নাম্বার বলিনি, পেজ নাম্বার বলিনি। কেন বলুন তো? একটা হাদিস পড়তে আমার 6 বছর, 5 বছর, 2 বছর, 6 মাস, 3 মাস লেগে যায়। আর বলার পরে যখন আমি দ্বারা গিয়ে সহজে খুঁজে নাই, ভাই আমি এত মেহনত করি, এত হিংসা হবে কি?
বাস হাদিসটা বলে দেব। হ্যাঁ, যদি ভাষা লাগাতে চান যে হাদিস নেই তাহলে আমাকে চাইবেন, ফোন করবেন, আমি পেজ নাম্বার, ফোন পেজ, হাওয়ালা নাম্বার সব পাঠিয়ে দেব। জি জি আসেন এবারে। না পরিষ্কার বলে গেলাম, ভয়ডর করি না, ইমতিয়াজ, আমার নাম ইমতিয়াজ। যেখানে কথা বলবো খাঁটি, উল্টো সিধা হলে ছাড়িয়ে দেব। তাই নানা রেখেছে নাম ইমতিয়াজ। মুর্শিদ আমাকে খাঁটি সোনা করে দিয়েছে, তিনি তার জবানে বলেছেন। অতএব মুর্শিদ যখন বলেছেন তুমি যেখানে আমি সেখানে, তাই আমি মনে করেছি আমি যেখানে আমার খাজা সেখানে। হ্যাঁ, খাজা বাবা তলোয়ার নিয়ে আসেনি, কোরআনের রসুল নিয়ে, নবীর সুন্নাহ নিয়ে এসেছেন। কোরআন আর সুন্নাহ দুটো এনার পরে কোরআন আর সুন্নাহকে ঢুকিয়ে দিয়েছে কোথায়? শাহ আস্ত হোসাইন, বাজ আস হোসাইন, দীন আস হোসাইন, দিন পানা আস হোসাইন, শরজাদ নাদাদ আস দরদস্ত এজিদ, হক হক বিনা লা ইলাহা হোসাইন। জগতের সম্রাট হোসেন, বাদশা হোসেন, দীন হোসেন। কোরআন বলছে দীন হলো ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। कब्र में सवाल होगा तुम्हारा दीन क्या? मेरा दीन इस्लाम। अल्लाह तेरा दीन क्या? मेरा दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के पास बहुत पसंदीदा दीन है इस्लाम। अल्लाह के पास पसंदीदा दीन क्या है? इस्लाम। और मेरे ख्वाजा ने तो पूरा दोनों का उल्टा फरमा दिया, दीन है हुसैन। एक ख्वाजा बाबा क्या कमाल कर दिया तूने। खुदा ने फरमाया दीन इस्लाम है। कब्र में सवाल होगा दीन किया, तो मैं तो कुरान मुताबिक सवाल का जवाब दूंगा, इस्लाम मानने वाला मैं हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। और तूने बताया दीन अस्त हुसैन, दीन है हुसैन। कैसे हुआ? फिर दीन अस्त हुसैन नहीं, दीन पाना अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाले हुसैन। दीन कितना गरीब, दीन लावारिस, दीन पना। तलवार की नोक निकल के धार दवा चलছে, ধার দিতে দিতে তলোয়ার চলতে চলতে কারবালাতে তলোয়ার উঁচু হয়েছে। দিন চলে গেছে এজিদের হাতে, এজিদের হাতে দিন চলে গেছে। ইমাম হোসেন, ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম খেলাফত দিয়ে দিয়েছে, দুনিয়াবি মাসুমি খেলাফত পায় করে নিয়ে নিয়েছে। কোন রক্ত রাঙাস না, তুমি নিয়ে লাও। কিন্তু ইমাম হাসানকে খেলাফত চেয়েছে, খেলাফত দিয়েছে, হাত চাইতে দিতেন না। হোসেনকে খেলাফত চায় না, খেলাফত থাকলে তো চাইবে, হাত দাও। হোসেন, ইমাম হাসান যেমন খেলাফত দিয়ে দিলেন, তো হোসেন তো হাত দিতে পারতেন। খেলাফত আর হাত কতটা তফাৎ জানেন? খেলাফত দুনিয়াবি ওহদা, দুনিয়াবি मालामाल आज है तो कल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये हाथ कल भी था आज भी है, क्या रहेगा? क्यों? तुम्हारा हाथ जिसका हाथ पर है वो तुम्हारा हाथ नहीं, वही अल्लाह का हाथ है। यानी अल्लाह का हाथ, मोहम्मद का हाथ। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो मैं करबला में क्या देख रहा हूँ? हुसैन शहीद नहीं हुए, हुसैन से मोहम्मद है, यानी हुसैन की सूरत में मोहम्मद शहीद हो रहे हैं। तो मैं ताजिया हुसैन की नहीं कर रहा हूँ, ताजिया तो मोहम्मद का मना रहा हूँ। करबला में मोहम्मद का मना रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन से है, तो अगर मोहम्मद का हाथ खुदा का हाथ है तो मोहम्मद हुसैन से है, तो हुसैन का हाथ भी तो मोहम्मद का हाथ है। अगर मोहम्मद का हाथ है तो खुदा का हाथ है, तो ये हाथ से यजीद का हाथ में दे दिया जाए। यजीद का हाथ में अगर हाथ दिया जाए तो मोहम्मद का हाथ, यजीद हाथ দিয়ে দিলে মোহাম্মদের হাত দেয়া হলো। মোহাম্মদের হাত দেয়া মানে আল্লাহর হাত দিল। আদম থেকে মোহাম্মদ, আলী, হাসান, হোসেন সকলের হাত আল্লাহর হাত দেয়া হলো। অতএব যখন यजीद হাত হোসেন হাত দিয়ে দিলেন, তো यजीদ বলতো মোহাম্মদ ধর্ম ঠাকুরসলা, মোহাম্মদ ধর্ম মিথ্যা। কারণ আমি এখন ফেরাউনের মতো আনা রাব্বুকুমুল আলা, তোদের সবথেকে বড় খোদা। কেন? মুসা ফেরাউনের কাছে জেল হয়নি, মুসা বিজয় লাভ করেছে, ফেরাউন ধ্বংস হয়েছে, মুহাম্মদ
যদি আউয়াল আফজাল নবী এবং আখির জাহের নবী তো সেই মুহাম্মদের নারাসা হোসেনের হাত তো মুহাম্মদের হাত মুহাম্মদের হাত তো আল্লাহর হাত অতএব হোসেন যখন আমার হাতে হাত দিয়েছে অতএব আল্লাহ আল্লাহ মুহাম্মদ বলে কোনো জিনিস নাই অতএব আমি আল্লাহ বড় বড় থেকে এইজন্য হোসেন হাত দিলেন তো হোসেন যখন হাত দেয় না এজিদের হাতে দিন লটর পটর খাচ্ছে দিন গরিব দিন অসহায় দিন ওয়ারিস নাই बस इमाम हुसैन खातून जन्नत की पीने वाला दूध पीने वाला हुसैन जो खून बना वही फातिमा की दूध को लुटा दिया नाना मुस्तफा की दिल को लूटने नहीं दिया अपने को लुटा दिया 6 माह की अली असगर को लुटा दिया खानदान नबूवत को लुटा दिया खानदान रसालत को लुटा दिया पूरा खानदान उजड़ गया लेकिन दीन बचा लिया दीन बचा सब कुछ लुटा दिया दीन बचा लिया बड़ी सोचने की बात है इसीलिए हम करबला मनाते हैं अगर करबला ना होता तो मोहम्मद की दीन नहीं मिलती करबला ना होता मिलते ही पेते ना तो एक सल्तनत पावर परे এমন ভাবে ইমাম হোসেন দৈহিক ভাবে হেরে গেল এজিদ দৈহিক ভাবে জিতলো এজিদকে জাহান্নামের তলাতে ইমাম হোসেন এমন নিচে নামিয়েছে ও প্রতি বছর এজিদি পন্থীদের মাধ্যমে ধরে ধরে উঠতে চায় আর হোসেনি ওয়ালারা একটা মাচা মারে আবার এক বছরের জন্য তলিয়ে দেয় हम हुसैन एक थप्पड़ मारूंगा एजिद को उभरने की कोशिश करेगा तो लाठी मारूंगा हाँ तो हुसैन तख्ते बसलेन ना हुकूमत करलेन ना सल्तनत करलेन ना बादशाही करलेन ना हुकूमत करलेन ना और खाजा बाबा আপনি কি করে বললেন শাহ হোসেন জগতের সম্রাট হোসেন বাদশা হোসেন কবে বাদশাহী করেছেন কবে সম্রাট হয়েছেন কবে হুকুমত করেছেন না 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 এজিদ করেছে তখতে বসেছে হুকুমত করেছে খাজা বাবা বলছেন ইতিহাস যারা तशव्वुफ से भेद ले जरा रूहानियत से सोच ले जरा जरा अकल की तौर से सोच ले हुसैन का बादशाही तू भी देख पाएगा सम्राट शाहनशाह देख पाएगा कैसे हुसैन দৈহিক ভাবে নিজেদের খানদানকে লুটিয়ে দিলেও ইনসানিয়াতের মুসলমান শুধু নয় ইনসানিয়াতের যারা ইনসান ইনসান হ্যাঁ ইনসানিয়াতের দিলের মধ্যে হোসেন এমন ভাবে জায়গা বানিয়ে নিয়েছে যে কলবের মধ্যে আল্লাহ থাকে কুলুবুল মুমিনিনা আরশিল্লাহ মুমিনের কলব হলো আল্লাহর আরশ আল কলবু বাইতুল্লাহ মানুষের কলব হলো আল্লাহর ঘর সেখানে হোসেন সিংহাসন বানিয়েছেন তো যখনই পোতা হয় তো রাজা হোসেন গোলাম হোসেন আব্দুল হোসেন মাজিদ হোসেন আশরাফ হোসেন আরে হোসেন তো হোসেন ভোটার লিস্ট দেখো সারা কায়নাত হোসেনের সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে দিয়ে হোসেনের পূজা হয়ে গেছে হোসেনকে বাদশা বানিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ হোসেনকে বাদশা বানিয়ে हाय 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 लेकिन एजिद के रशीद नजर देखिए एजिद के तादाद देखिए एजिद के बड़ो नबीर उम्मत बड़ो उलमा बड़ो आबिद की ना की देखिए एजिद के काफिर बोला जाबे अरे बेवकूफ नादान তোর এজিদকে এমন তলি দিয়েছে যে কোন বেটার হিম্মত নাই যে পোতার নাম রাখবে আব্দুল এজিদ নিজের নাম রাখবে গোলাম এজিদ এজিদ এমন ভাবে এজিদকে মেরে দিয়েছে হুকুমত করা সত্ত্বেও এমন জাহান্নামে ঠেলে দিয়েছে যে ওঠার চেষ্টা করলেই হোসাইনি গোলামরা এক থাপ্পড় মারে কারবালার ময়দানে ঘটা ইয়াদ করে আবার ঢুকে যায় ও আর জাহান্নামের তলায় তলি দিয়েছে তো আমার ইমাম হোসেন শামসরকে খাজা বাবা প্রত্যেক ইনসানের দিলের মধ্যে যে হোসেনকে রেখেছে সেই দিলকে দেখে খাজা বলছে শাহ হোসেন বাদশাহ হোসেন মানে হোসেন মরেনি প্রত্যেক দিলের সিংহাসনে বসে হোসেন বাদশাহী করছে হায় 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 দিলের সিংহাসন যেখানে আল্লাহ থাকে সেই আসনে বসে হোসেন বাদশাহী করছে দিন হোসেন খুদ দিন হোসেন दिन की হোসেন দিন কি করে হয় एग्जांपल দিয়ে বলি अच्छा আগুনের কাজ কি ভাই আগুন 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 क्या करते आगुन का काम क्या है बोलिए भाई जलाने माने जला देगा ना जला देगा आगुन
আপনি তো আগুন বলেছেন, বলুন তো ভাই একটু আগুন বলেন, আগুন বলেন, আগুন 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 জিভ জ্বলেছে, জিভ জ্বলেছে, আপনি বললেন তো আগুনের কাজ জ্বালিয়ে দেওয়া, জিভ জ্বলেছে। अच्छा आग बोली, आग आग जल गया जी। अब तो अभी बोला है ना आग का काम जलाना, तो आप तो आग बोल रहे हैं ना, जीप जलाने कैसे? यानी लब से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इस जवान पर भीजा लगा है, लौब है, थूथू है, इसलिए जल नहीं रहा है। कागज कलम लाइए, लिख दीजिए आग आग गो आग आग। क्या कलम जल जाएगी? कागज जल जाएगी? आग का काम जलाना है, जलेगा नहीं जलेगा तले। अच्छा भाई और एक बात, ठीक है कागज में आग लिख दिया, कागज में नहीं जला, थोड़ा सा आग हाथ में ले आइए। अब उठा नहीं पाएंगे तो आग तो उठाना पड़ेगा। तो जो असली आग है, सोच लीजिए, असली जो आग है वो आपको जलाएगा, लिखने से नहीं जलेगा। ये मौलवी कुरान में लिखा रहने से वो इस्लाम नहीं है। ख्वाजा ने देखा इस्लाम तो हुसैन है, कुरान में हुजूर वाली इस्लाम है, और करबला में वजूद वाली हुसैन इस्लाम है। गरीब नवाज असलियत को दिखा रहे हैं, तो कुरान भेज रहा है करबला की तरफ, देखो हुसैन इस्लाम है, हुसैन दीन है। तो वही दीन को फैलाने के लिए, जगाने के लिए हम ताजिया नहीं करेंगे। कौन फतवा देगा? उस फतवा से लड़ेंगे। फतवा क्या बात? अरे दलील है, ताजिया मेरे पास इतना दलील है ना, जो ठाक दूंगा उभर नहीं पाएंगे। हाँ बहुत सारे दलील है। तो भाई ख्वाजा ने बोला, यानी एजील को ऐसा मारा, दीन बीमारी था, आ गया हुसैन के पास। हुसैन ने एजील से दीन को छीन लिया और दीन को पनाह दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। दीन को पनाह दे दिया, यानी दीन का वारिस भी हुसैन, खुद दीन भी हुसैन, दीन का वारिस भी हुसैन। शर्त दे दिया, हाथ ना दिया। हाँ ये हुसैन हक़ के बिना ला इलाहा हुसैन, ला इलाहा का जो हक बुनियाद है। भाई जब बिल्डिंग बनाते बुनियाद है ना नीचे, अगर बुनियाद सही ना रहे बिल्डिंग कायम रहेगी, गिर जाएगा ना। तो हुसैन वाला जो होगा उसी के पास दीन है, क्योंकि हुसैन बुनियाद है किसका? ला इलाहा के बिना ला इलाहा हुसैन। तो ला इलाहा का बुनियाद क्या है? ला इलाहा का मतलब नहीं है खुदा, कोई माबूद नहीं। बुनियाद क्या है? इल्लल्लाह। तो इल्लल्लाह को बचा के रखने के लिए हुसैन की जरूरत है, यानी हुसैन बुनियाद है और हुसैन पर अल्लाह कायम है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह मिलेगी तो हुसैन को पाना जरूरी है। ख्वाजा ने बताया, मैंने नहीं बताया, ख्वाजा ने बताया, कोई मुल्ला नहीं बताया। पूरा कायनात को पूरा इसमें सिमट दिया इनका सिद्धांत। तो इसीलिए मेरे नबी ने क्या फरमाया? जो मैंने मेराज की रात में गए, सफर करते करते अल्लाह ने मुझसे अली की तीन वसीयत फरमाई। तीन वसीयत फरमाया। क्या? ए मुस्तफा अन्नहु सय्यदुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कायदुल गुरुल मुखज्जलीन। आली मोमिन का सैयद है, आली मुत्तकी का इमाम है, और आली वलियों का कायद नेता है। बोलो सुभान अल्लाह। जितने वली हैं उन वलियों का कायद है, शुफर नूरानी चेहरे वालों का कायद है, दिशारी है, नेता है, मुत्तकीन का इमाम है, मोमिनों मुसलमानों का सरदार है। तो आली जिसका सरदार वो मोमिन है, आली जिसका इमाम वो मुत्तकी है। उसके लिए कुरान है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो मुत्तकी कुरान तो है, कुरान का वारिस तो आली है। कुरान को तुम रख दो बगल में, सिर का बगल में एक कुरान, फजर की नमाज पढ़ना है, बहुत मेहनत की है आज, तू मुझे उठा देगा, क्यों
क्योंकि कुरान ने फरमाया ज़ालिकल किताबुल्लाह रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान वो है जिसमें कोई राय नहीं, कोई शबा शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए ये किताब हिदायत है, हिदायत देने वाला है। तो तू जब हिदायत देने वाला किताब है, किताबुल्लाह है, मैं शराना के पास रखता हूँ, बस फजर की जब आज़ान होगी, अगर नींद न टूटे तो तू मुझे जगा देना। फजर की आज़ान भी हो गई, जमात भी हो गई, नमाज पढ़ के सब निकल के आ रहा है, सूरज तेज लगा, नींद टूट गया, सूरज है कुरान तू हिदायत देने वाला अल्लाह ने फरमाया, तू झूठा बेवकूफ काहे कुरान को झूठा समझ रहा है? बस समझ रहा है। अरे कुरान में लिखी हुई है। अच्छा भैया बुक सुन ओ डॉक्टर बचाना पड़ेगा, लिख दिया भाई। सुबह को एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल और सोने का पहले रात एक कैप्सूल। क्या करेंगे? सुबह को एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, रात को एक कैप्सूल। आपको लिख दिया, आप मेडिकल हाउस में नहीं जाके आप सुबह को पढ़े, सुबह को एक कैप्सूल अच्छा हो जाएगा बुकसुल, शाम को एक कैप्सूल अच्छा हो जाएगा बुकसुल, और रात को एक कैप्सूल अच्छा हो जाएगा बुकसुल। दुकान में जाके कैप्सूल खरीद करके खाना पड़ेगा। तो आप कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान जहाँ भेज रहा है क्या होगा? वो पढ़ने से क्या होगा? ना तुम समझते हो ना तुम्हारा अकल। कुरान पढ़ने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए कुरान उतरा है। कुरान पढ़ो, कुरान जहां तुम्हें ले जा रहा है वहीं जाके जिंदा कुरान बन जाओ, जिंदा कुरान के पास जाओ। हाँ, तो कुरान में भेज रहा है। तो कुरान का वारिस कौन है? अली माल कुरान वल कुरान माली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, यानी हर घर में कुरान है, अली नहीं। लेकिन जिसके पास अली है उसके लिए कुरान की जरूरत नहीं, क्योंकि अली जब है तो मेरा कुरान भी मेरे साथ है। कुरान भी मेरे साथ है, कुरान है अली नहीं। लेकिन मेरा घर में कुरान तुम नहीं भी देख पाओ, मेरा सीना में अली है तो ही कुरान भी है। हाँ, कुरान जहां है अली भी वहां है। तो भैया इमाम मुत्तकीन का इमाम कौन है? अभी बोला मैंने, अली अली बोले ना, बस सजदा उसी का नाम है जब इमामुल मुत्तकी हो सामने, ऐसी सजदा हो मेरी जब बरुए मौला हो सामने। ज़मीन पे सजदा किए हजारों सजदा कर रहे हैं। ज़मीन पे सजदा, मुलाजा फरमाइएगा, तस्रीफ ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत बढ़िया टाइम भी लग जाएगा। ज़मीन पे सजदा, हजरत जी ज़मीन पे सजदा किए हजारों, अरे खुदा को सजदा किया नहीं है। खुदा को सजदा किया है? अल्लाह कहाँ है? ऊपर नीचे? अल्लाह ऊपर नीचे? बताइए, कोई कहता है यहाँ। अच्छा, सावन की चांद 15 तारीख को मुल्ला लोग कहता है ना, जो अल्लाह 7 तबक से पहला तबक में अल्लाह उतर के आता है। क्यों ना? जितना पूरा साल गंदगी क्या है, खाता भरा हुआ है, सबको साफ सफेद कर देगा, हल्का अल्लाह। अरे भाई अल्लाह जब नीचे तला पहुंचते से যেতে আর একটু নেমে গেলে তো হয়ে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু উপরতলা বন্ধ হয়ে গেছে। 7 তবকে যে ছিল সারা বছর ওখানে খানা খেয়ে রেখে এলো, নিচে তলে এলো, আবার এখান থেকে ভোর হলেই চলে যাবে, ফের এখানে কাকে রেখে যাবে, তার মানে ওই পর্যন্ত রয়ে যায়, এখানে আসেনি। হ্যাঁ, তাহলে আল্লাহ উপরে দোয়া করছেন, আল্লাহ সাইদাতুল ইসলামের নিচু,
তার মানে পিছনে নাই, উপর নিচে উপর নিচে উপর নিচে। আল্লাহ উপরে নিচে বলে আল্লাহ উপরে, সেজদা নিচে না উপরে নিচে, তাহলে আল্লাহকে সেজদা দিলি না পাছা দিলি? भाई गौर करो, नहीं अल्लाह को मैंने खुद दे दिया। सजदा का मतलब सब देना नहीं, सब कुछ देना है। यानी वाह अम्मा को मैंने को तुम बंदा तुम जहां भी रहो मैं तेरे साथ हूं। मैं जब तेरे साथ हूं, सर देने का मतलब या इसका मतलब क्या? बस तेरे पास मैं विलीन हो रहा हूं, तेरे पास मैं फना हो रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है तू है। इसी का मतलब सजदा। हां सजदा का मतलब समझ माथा ঝুঁকা ले শিরক হয়ে যায় কম বকত। সকলের কাছে মাথা ঝুঁকালে শিরক হয় না, তো পীরের কাছে মাথা ঝুঁকালে শিরক। হ্যাঁ আফসোস মাঝ বলির কাছে মাথা ঝুঁকাচ্ছে, টিভি দেখছে মাছ ভাইয়া অনেক এসব আমরা উল্টো পাল্টা বলি, সব জায়গায় মাথা ঝুঁকাচ্ছি। হ্যাঁ কোথায় না কোথায় মাথা ঝুঁকাচ্ছি। বলবো अकलमंद को काफी फकते की इशारा, नादान को काफी नहीं। दफ्तर का बताला जो अकलमंद है उसका इशारा काफी है, जो नादान है हजार दलील दीजिए वो काफी नहीं होगा। हाँ कोई लाभ नहीं। ज़मीन पे सजदा किए हजारों, अरे खुदा को सजदा किया नहीं है, जो दिल में चाहत है बाग जन्नत। যে দিলের মধ্যে তুমি জান্নাতের বাগিচা ঢুকিয়ে রেখেছো, খোদা কে রাখবে কোথায়? अरे दिले যদি তুমি জান্নাত পাবে ঢুকিয়ে রাখো, তো খোদা রাখার জায়গা আছে। তাহলে সেটা কথা দিচ্ছ খেয়াল তোমার জান্নাত। হ্যাঁ তো জান্নাত না বানালে নামাজি পড়তো না। জান্নাতটা দিয়ে কিন্তু মোদি সাহেব লাভ করেছে। মানে আল্লাহ যদি জান্নাত না বানাতো মসজিদ হতো না, মসজিদ না হলে আমার ইমামতি হতো না, ইমামতি না হলে কেতাম কি জি चाहे से बड़ा इमाम हो छोटा इमाम हो, हजारों लाखों करोड़ों इमाम जन्नत की लालच में मस्जिद में है, आदमी को नमाजी बनाता है जन्नत देने के लिए। कितना फैमिली गुजर जाता है। हाय हाय हैं जो दिल में चाहत है बाग जन्नत, अरे ओ दिल खुदा को किया नहीं है, ज़मीन पे सजदा किए हजारों। अगला बंदा पे से किस्मत हो हुए दीवाना। जुम्मा का दिन देख लो, ऐसा बड़ा बड़ा जुब्बा हुब्बा टोपी लगा के ऐसा दीवाना बन के जाते हैं जैसा फरिश्ता आ रहा है, जैसा फरिश्ता आ रहा है। हुए दीवाना खुदा को न जाना, बताओ कैसा ये आशिकाना। दीवाना तो हो लेकिन खुदा के जान लेना। हुए दीवाना खुदा को न जाना, बताओ कैसा ये आशिकाना। जुदाई में हो तुम खुदा से, जुदाई में हो तुम खुदा से, अरे खुदा तो तुमसे जुदा नहीं है, ज़मीन पे सजदा किए हजारों। मुलाजा फरमा रहे। अगला बात ऐ हाफिज़ो तुम कुरान में देखो, हाफिज़ो तुम कुरान में देखो, वो सुजूदू मुलाजा वक्त करीब को समझो, यानी अल्लाह के करीब सजदा करो, अल्लाह की करीब सजदा करो। तो हम तो काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह को बहुत दूर समझता हूँ, करीब कहाँ है? देखना है करीब को। ऐ हाफिज़ो कुरान में देखो, वो सुजूदू वक्त करीब को समझो, मुसल्ला में तुम खड़े हो लेकिन, अरे मुसल्ला में तुम खड़े हो लेकिन नमाज कायम
किया नहीं है, मुसल्ला में तुम खड़े हो लेकिन तुम नमाजिया दुनिया वालों बता रहे हैं लेकिन नमाज तेरा काम नहीं हो रहा है। मुसल्ला में तुम खड़े हो लेकिन नमाज कायम किया नहीं है, ज़मीन पे सजदा किए हजारों। आगे बढ़िए। राह खुदा में अब ऐसी नमाज बनना है, राह खुदा में फना तो कर लो। खुदा की जो राह है उसमें अपने को फना करना है, तब तो नमाज बनेगी ना। अरे राह खुदा में फना तो कर लो, खुद ही पता है यही समझ लो। सुभान अल्लाह। जब खुदा की राह में फना करोगे तभी देख पाओगे खुद ही बाका है और कोई नहीं है, ला मौजूदा इल्लल्लाह। इसीलिए खाजा गरीब नवाज ने फरमाया नमाज सजदा सजूदा, नमाज जाहिदा सजदा सजूदा, नमाज आशिका तरके वजूदा। जाहिद नमाज हलो सजदा सजूद उठा और आशिक नमाज तरकी गो तरके वजूद। पता लगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, गरीब नवाज की लिखी हुई तहरीर किताब है, लगाओ मुल्ला मुल्ला कलम में कितना रोशनी है, लगाओ। जो आशिक है वो वजूद से नहीं नमाज पढ़ते, पूरा पुराना बाका। अरे एहिया मुनीरी की तहरीर की हुई है किताब मकतूबात शादी, वो तहरीर की है। दूसरा जिल्द में शिबली हजरत शिबली अलैहि रहमा की कौल है क्या, जब मैं अगर नमाज पढ़ूं तो मुश्रिक बन जाऊं, अगर ना पढ़ूं तो काफिर हो जाऊं। जितना बड़ा कलाम है, हम जवाब आज नहीं देंगे। नमाज पढ़ने से मुश्रिक, ना पढ़ने से काफिर। क्या करूं? बहुत गहरी बात है ना। नहीं आप लोग बहुत ओजन माने बहुत नहीं चले, ये बहुत हिट वाली बात समझ में नहीं आएगी। नहीं आज नहीं बताएंगे इसमें। अरे बोलो बोल हवे इंशाल्लाह कभी आएंगे, इसे दलील की तौर से समझाना पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह वाला आपको फतवा नहीं दे पाएंगे, हम हद देंगे। मैं किताब की हवाला दे रहा हूं, उस किताब में है क्या हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैहि की कौल कौन लिखा है? अल्लामा एहिया मुनीरी अलैहि रहमा लिखी हुई है, मकतूबात शादी किताब के नाम। दूसरा जिल्द पेज नंबर अभी याद नहीं है, जरूरत पड़ेगी फोन कीजिएगा तो हम भेज देंगे, कोई बात नहीं। लिखा हुआ है उसमें जब मैं अगर नमाज पढ़ूं तो शिर्क करूं यानी मुश्रिक बन जाऊं, अगर ना पढ़ूं तो काफिर हो जाऊं। नमाज पढ़ ले मुश्रिक, ना पढ़ ले काफिर। लेकिन इसका जवाब हम दे दिया, ढूंढ लिया, फिर भी आज नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना हल्का सा बोल गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं कैसे समझाऊं। अब इसको लॉक करके रखे हैं, बाद में कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह देखा जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ जो बात चल रहा है क्या, यहाँ बात चल रहा है जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो कौल है नमाज जाहिदा सजदा सजूदा, नमाज आशिका तरक वजूदा, ये तो बुझलाम। किंतु रोजार बारे बोलछे जो अहले मार्फत की रोजा वो है पहले इफ्तार बाद में शहरी। हाय 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 हाय। अरे शरीयत कहता है पहले शहरी बाद में इफ्तार, शहरी पहले इफ्तार शाम को। ख्वाजा गरीब नवाज ने इसरार हक की किताब में तहरीर की है क्या, जो पहले मार्फत वालों को जो रोजा है, मार्फत वाले के लिए जो रोजा है पहले इफ्तार होना चाहिए, बाद में शहरी होना चाहिए। क्या कलाम है। तो जब हम ओली मानते हैं तो उसका कलाम नहीं मानेंगे तो जरूर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई आलिम वाला जो अगर होगा तो उन्हीं के पास जाके तो तालीम लेना पड़ेगा ना खाली आंख बंद करके झुक झुक के कुरान पढ़ने से होगा, कुछ नहीं होगा। वही कुरान पिटाई करेगा। बोल क्या समझा कुरान पढ़ के, क्या समझा, क्या किया, तू पढ़ा है कुछ समझा नहीं, वही कुरान पिटाई करेगा। हाँ भाई
जो दवा खाने के लिए दे रहा है अगर तुम बोलोगे जो नहीं मैं लगाऊंगा, और जो लगाने का दिया है मैं खाऊंगा, तो ऐसी उल्टा पल्टा होगा ना। हाँ तो आइए राह खुदा में फना तो कर लो, खुद ही बताए यही समझ लो, जहाँ है हमदम जहाँ है हमदम वही है आदम, जहाँ है हमदम इसीलिए सजदा करने का हुक्म हुआ। अरे जहाँ है हमदम वही है आदम, तुम भी तो आदम हो ना। जहाँ है हमदम वही है आदम, ये दम के सिवा कुछ मिला नहीं है। जहाँ है हमदम वही है आदम, ये दम के सिवा कुछ मिला नहीं है। ज़मीन पे सजदा किए हजारों, अरे ज़मीन पे सजदा किए हजारों, खुदा को सजदा किया नहीं है। ज़मीन पे सजदा किए हजारों। अगला बंद मुराजा फरमाइए। जब जब बनाया गया ना आदम को, फैजा सवैतहु और नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ौलहु साजिदिन, जब मैंने पूरा पूरा बना दूंगा आदम का जो डिजाइन, और जब मेरी तरफ से रूह फूंक दूंगा तब तुम सजदे में जाना। तो उसी का आयत के बारे में क्या है? वनफ़ख़्तु फ़ीहि मेरी रूही का, फना जब हो जाएगा तशव्वुर में, फिर उसका शक्ल लेके जब तशव्वुर में फना हो जाएगा तब यही मुकाम आएगा। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मेरी रूही का, यही तो इशारा है खुदा का, यही तो इशारा है खुदा का। हुए ओ दाखिल सदा हुआ जब, हुए ओ दाखिल रूह, हुए ओ दाखिल सदा हुआ जब, किसी को उसका पता नहीं है। हुए ओ दाखिल सदा है उसका, हुए ओ दाखिल सदा हुआ जब, किसी को उसका पता नहीं है। जो दिल में चाहत है बाग जन्नत, जो दिल में चाहत है बाग जन्नत, अरे वो दिल खुदा को दिया नहीं है। ज़मीन पे सजदा किए हजारों फरिश्ते है हुक्म मौला, फरिश्ते है हुक्म मौला। आदम में दम है, आदम में दम है, करो सजदा। अल्लाह की तरफ से फूका गया ना, तो मुर्दा हालत में सजदा करने का हुक्म नहीं। जब अल्लाह की रूह चली गई तो फूको, यानी सजदा। तो आदम ऐसा काबा किबला घर को हम सजदा करते हैं, तो काबा घर को सजदा करने का हुक्म है अल्लाह, लेकिन अल्लाह को तो नहीं देख पाते। काबा घर को सजदा करो, अल्लाह का सजदा हो जाती है, तो आदम को सजदा करो, रूहानियत खुदा की नूर मुस्तफा को सजदा हो जाती है। हाँ राज की बात है, लेकिन समझ नहीं पाता है, फतवा में मशरूफ रहता है। किसको फतवा दूं? फतवा लगाओ, लगाते रहो तुम फतवा। हम तकवा पे रहे, तुम फतवा में रहो, कोई बात। हम तकवा में रहे, फतवा में रहे, कोई बात। अरे नबीउल इस्लाम के ऊपर कितना फतवा लगाया, मौलाना रूम के ऊपर कितना फतवा लगाया, गौसुल आजम के ऊपर कितना फतवा लगाया, ख्वाजा गरीब नवाज के कितना, मौला अली के ऊपर कितना फतवा लगाया। लगाते रहो, ये उलमा शूफ का काम है। हाँ ठीक है। क्या फरिश्ते फरिश्ते है हुक्म मौला, आदम में दम है, करो सजदा किया
सब सजदा आदम के आगे, किया सब सजदा आदम के आगे, मगर आजाद किया नहीं है। जमीन पे सजदा किए हजारों, अरे जमीन पे सजदा किए हजारों, खुदा को सजदा किया नहीं है। क्यों? जो दिल में चाहत है बागे जन्नत, जन्नत की अगर लालच है तो खुदा को सजदा नहीं होगी। जो दिल में चाहत है बागे जन्नत, अरे वो दिल खुदा को दिया नहीं है। ज़मीन पे सजदा किए हजारों। क्या भाई दिल का बुरा हो रहा है? रूहानी और तीन बंद है। समझ लो शरीयत, कहते हैं शरीयत तो मानना पड़ेगा, शरीयत तो मानना पड़ेगा। शरीयत फतवा देता है तो सुन लो, शरीयत मेरा भी तरफ। समझ लो शरीयत यही बताया। शरीयत क्या? तुम तो खुद ही को नहीं पहचानते हो। सुन लो, समझ लो शरीयत यही बताया, मुत्तकी को क्या क्या दिखाया। समझ लो शरीयत यही बताया, मुत्तकी को क्या क्या दिखाया। कानों में उंगली जुबां पे अल्लाह, कानों में उंगली जुबां पे अल्लाह, क्या इशारा हुआ नहीं। यही तो अल्लाह का चेहरा है, यही तो अल्लाह का चेहरा है। ये चेहरा मोहम्मद की चंदवा है। समियाना देख। समझ लो शरीयत यही बताया, मुत्तकी को क्या क्या दिखाया। कानों में उंगली जुबां पे अल्लाह, कानों में उंगली जुबां पे अल्लाह, क्या इशारा हुआ नहीं है। ज़मीन पे सजदा किए हजारों। ए बंद को जरूर सुकून से मुलाजा फरमाइएगा, खुशी तौर से। क्या क़याम तुम हो, कौन क्या है? कद क़ामत सलाह, तहक़ीक़ नमाज खड़ी हो गई। भाई लड़का जब होता है बाईं तरफ आज़ान, दाहिना तरफ इक़ामत। अच्छा आज़ान हो गई, थोड़ा सा कम हाथ में है, अरे भाई 15 मिनट बाद तो जमात होगा, हम तो निपटा ले, बस 5 मिनट 10 मिनट लगा दिया। अब चलो मस्जिद में जाके सुन्नत अदा कर लिया, जमात के लिए इंतजार कर रहे हैं। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह। उठने की जरूरत है ना? कद क़ामत सलाह, फिर भी बैठे हुए, आज़ान हो गई तो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये सही, लेकिन कद क़ामत सलाह जब आवाज कान में आ गई तो बैठना नाजायज है, उसका पहले खड़े हो जाना। तो क्यों? न कद क़ामत सलाह, तहक़ीक़ नमाज खड़ी हो गई। खड़ा हुआ कौन? कतर वाले, तो कतर वाले है इंसान। मुक़ब्बिल क्या कर रहा है? तकबीर देने वाले, नमाज खड़ी हो गई। अभी तो इमाम नमाज शुरू ही की नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह तब नमाज शुरू होगा। कद क़ामत सलाह, खड़ी हो गई। हम और बता रहा है क्या? नमाज खड़ी हो गई, यानी फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सूरह माऊन अल्लाह ने फरमाया, यही नमाज के लिए अफसोस जो अपनी नमाज से गाफिल है, बेखबर है। यानी तुम आए हो, ए मौलवी साहब आज़ान भी दे दिया, इक़ामत भी दे दिया, नमाज इसका परवाज़ कब होगी? बोले 13 साल के बाद, 12 साल के बाद, 13 साल के बाद। अच्छा, पहले आज़ान अभी हो गया, इक़ामत अभी हो गया, नमाज जब 13 साल 12 साल होगा, अल्लाह ना करो सबका हयात हो, अगर उसका पहले मर जाए तो इक़ामत सुन के बगैर नमाज से चले जाएंगे। भेड़िया खा ले, कुछ भी हो जाए,
नहीं, नबी ने जब शरीयत बनाया तो तुम्हें ना समझ में आए कोई बात नहीं, जब इकामत दे दिया तो तुम जानो या ना जानो हिया बिलाया अली अबी तालिब, यानी जब से उसके कान में आजान पहुंच गया, इकामत पहुंच गया, नमाज वही से शुरू हो गया। वो बच्चा को मालूम हो या ना हो, लेकिन उसका रूह बिलाया अली की ताज़ीम तवक्कुल से अली 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 कर रहा है। बोले सुभान अल्लाह। और सूरा नूर की एक आयत है 41 पढ़ के देख लो। आसमान और जमीन जो कुछ है सबको नमाज मालूम हो गया, सब नमाज जानता है, लेकिन इंसान गाफिल है। अच्छा, जमीन का ऊपर हैवान कुत्ता जो जानवर है ना, सबको नमाज मालूम है, कुरान फरमा रहा है, लेकिन हमको मालूम नहीं अफजल कौन है। हम कुरान आयत नंबर बता दिया, खोल के देख लो, अगर शक है तो स्टेज पे लाओ, हम देखा कुछ लेंगे भाई। नमाज जो है, अच्छा ग्रीनलैंड में कई महीना दिन कितना दिन, 6 महीना में एक दिन, 6 महीना में एक रात हो गया ना? लेकिन हुआ नमाज क्या होगा, इफ्तार क्या होगा भाई? कुरान कायनात के लिए, रोजा कायनात के लिए, लेकिन समझ में थोड़ा हमें हेरफेर हो रहा है। जहां जैसा बनाना चाहिए तो बस 2 बंद है जिसको सुनना जरूरी है। हजरत जी अभी खत्म करने वाला हूं, 2 बंद है बस। हाँ अच्छा हाँ जी जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। जी तुम हो, गौर फरमाइए, तुम हो, रुकू तुम हो, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकाऊ मार्रके, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ हो जाओ। अरे नमाज के साथ तो रुकू है, क़याम के बाद रुकू, फिर ज़कात देने के बाद रुकू करने के लिए बोल रहा है, ज़कात के बाद रुकू, वो कौन सा रुकू है? फिर रुकू वालों के साथ हो जाओ। मैं कुरान बता रहा हूं ना, सूरा बकरा आयत नंबर 43। जी क़याम तुम हो, रुकू तुम हो, सजद भी तुम हो, क़याम भी तुम हो, सजद भी तुम हो, क़याम भी तुम हो। अगर रहे नजर किसी पर, क़याम तुम, रुकू तुम, सजद तुम, क़याम तुम, अगर नजर किसी पर रहे तुम क्या समझो? जन्नत की तरफ, उसकी तरफ, उसकी तरफ। अगर रहे नजर किसी पर, न क़याम को सजदा हम ही हैं, इसके सिवा नजर अगर दूसरी तरफ चला जाए, अगर रहे नजर किसी पर, नमाज बिल्कुल हुआ नहीं है। अगर रहे नजर किसी पर, जन्नत पर सजदा या नहीं हुआ पर, दूसरा कोई लालच पर, अगर रहे नजर किसी पर, नमाज बिल्कुल हुआ नहीं है। ज़मीन पे सजदा किए हजारों, हकीकत नमाज तुम हो। अरे हकीकत नमाज तुम हो, ओ मोहम्मद ये भेद समझो, ओ मोहम्मद ये भेद समझो। क्या हो जाओ? क़याम अलिफ, रुकू है, सजदा मीम, क़ौद दाल, अलिफ मीम दाल, अहमद। लेकिन हर रकात में एक क़याम, एक रुकू, एक 2 सजदा, एक क़ौद। सजदा क्यों? इसीलिए अहमद बनाने के लिए मीम की जरूरत है, और मोहम्मद बनाने के लिए और एक मीम जरूरत है, यानी मीम है, मीम दाल, पूरा मामा शिकम में जब हम देखते इसी सूरत में सजदा बनता है। हाँ कलम लाइए, मैं पूरा डिजाइन बना दूंगा, अल्लाह भी बन जाएगा, बंदा भी बन जाएगा, कलमा तौहीद भी बन जाएगा, सजदा भी बन जाएगा, इंसान बना।
इसीलिए लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बड़ी तकरीम से बनाया, डिजाइन से बनाया। बस अपने को पहचान लो, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपना नफ्स को पहचान लिया वो अपना रब को पहचान लिया। यानी रब को पहचानने की पहले जरूरत नहीं, पहले अपने को पहचानने की जरूरत है। जो अपने को पहचाने मिल गया वही हवाला ठिकाना किया जो मुझी में खुदा है। अगर हमको पहचान लेंगे तो खुदा भी हम पहचान जाएंगे। खुदा दूर में नहीं है, लेकिन खुदा दिखाने वाला आईना की जरूरत है। आईना आईना आईना, यानी पीर और मुर्शिद की सूरत से देखो, पीर को आईना बनाओ। पीर को आईना बनाओगे तब मायूबा शक्ल शाखिदा मुस्तफा रादिदा मुस्तफा रब्बल का खुदारा वाली शक्ल नलही रहमान फरमाया, मुर्शिद की शक्ल से मैंने मुस्तफा को देखा, नहीं मुस्तफा को देखा बल्कि खुदा को देखा। वाह वाह वाह। हकीकतों में नमाज तुम हो, ओ मोहम्मद ये भेद समझो, इन्हीं में मौला बसे हुए हैं, इन्हीं में मौला बसे हुए हैं। हर बशर के सिवा तो खुदा मिला नहीं है। बशर तो ऊपर देखने में इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बस मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, फिर भी बशर नहीं, फिर भी बशर नहीं। जो दायरा है ना ये अलग अलग की तौर से तस्रीह होगा, कोई दिन अल्लाह अगर मौका दे तो ये बशर, मेरा बशर पीर का बशर तो एक नहीं है, वो फना हुआ बशर और मैं तो भी फना हुआ नहीं, बहुत अलग है। इन्हीं में मौला बसे हुए हैं, अरे बशर के सिवा तो मिला नहीं है। ज़मीन पे सजदा किए हजारों, आखिरी बंद मेरा मुर्शिद ने लिखी है, सदर हर जा, यानी सब जगह सदर हर जा खुदा को ढूंढा, मिलेगा सदर हर जा खुदा को ढूंढा, मगर खुदा पता न पाया, मगर खुदा पता न पाया। बताए मुर्शिद सुनो जरा अब, कहाँ जाके मिला? अरे बताए मुर्शिद सुनो जरा अब, वनहनु अक़रब वनहनु अक़रब पढ़ा नहीं है। नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारा जो शहरग है ना, जो कर्जन से सहरा कर्जन से देख देख उससे जो पाकीज़ा खून चलता है ना, उससे भी करीब हूँ मैं। वनहनु अक़रब पढ़ा नहीं है। बताया मुझसे दिखाएंगे ना वो अक़रब क्या है। ज़मीन पे सजदा किए हजारों, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, वो किताब का नाम दलीलुल आरिफीन, बस दो तीन लाइन इशारा हो गया, दो तीन इशारा हो गया। ख्वाजा गरीब ने फरमाया अहले मारिफत की असली इबादत पासन पास, बोलो सुभान अल्लाह, पासन पास। क्योंकि एक तस्बीह टूट जाएगी, बिखर जाएगी, जुबान बंद हो जाएगी, जब खींच के निकालेंगे तो सब किधर चला जाएगा। लेकिन दम चलेगा, चलते चलते इल्लल्लाह इल्लल्लाह करके चले जाएंगे। इसका कोई बीमारी नहीं है। तो क्या बता रहे? तो যদি আপনারা তরিকতের কিছু লাইন থাকে তাহলে নিতে পারবেন, আর না হলে ওরা পাখির মতো শরীয়ত শরীয়ত বলে চিল্লাচ্ছেন, তাহলে ওই উড়ে চলে যাবেন, চিনতে পারবেন না। शरीयत जब है तो उसके बाद तरीकत भी है, तरीकत जब है उसके बाद हकीकत भी है, मारिफत भी है। तो आइए इंशाअल्लाह जो कुछ मिलता है खुदा से, लेकिन खुदा से डायरेक्ट नहीं मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है। हम पहले बोला था कुरान पर अब लोगों का ईमान है ना, है कुरान पर ईमान है ना,
दलील क्या है? कुरान जो हक है, कुरान जो सच है, कुरान जो सही है, ला राइब है, क्या दलील है? क्या दलील है? कुरान आपको अल्लाह से मिला, अल्लाह ने खुद आके तिलावत की, আল্লাহ খুদ নিজে বলেছেন, ডাইরেক্ট দিয়েছেন, तो दलील क्या है? प्रूफ की दिबेन? अरे आम नहीं, कोई गैर मुस्लिम अगर सवाल कर बैठे कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है, क्या दलील है आपके पास? ये जगह, ये जो मकान जाएगा है, जमीन, ये मैदान किसी ना किसी का है ना, तो जब जिसका भी हो उसका दलील भी है, रिकॉर्ड भी है ना? तो कुरान जो हमारे हैं उन पर ईमान रखते हैं, दलील क्या है? दलील वो है, बस एक ही दलील, हमने ईमान रखा नूर नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अरे सबसे मेरे रसूलुल्लाह, क्यों ने रसूलुल्लाह ने बता दिया कुरान अल्लाह का कलाम, बस मैंने ईमान लाया, यानी मेरा दलील है मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान सच है, बस और किसी को माना या ना माना दूर की बात है, रसूल पर पहले ईमान लाइए। अल्लाह है मान लिया, देखा नहीं, किसको माना? नबी को माना, पहले रसूल को मानना चाहिए, तब तो अल्लाह को मानेंगे। लेकिन जब हम ईमान लाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। भाई ला इलाहा क्यों पढ़ोगे? ला इलाहा मतलब खुदा नहीं है, लेकिन जहां नहीं है वही है इल्लल्लाह, वही है इल्लल्लाह। और इल्लल्लाह जब है तो सूरत में कहा, कोई इल्लल्लाह को पाएंगे कहां? मन रानी फकत राया हर जिसने मुंह से देखा वो हक को देखा। ये भी रवाहुल बुखारी में, समझ में आ रहा है? तो हमद है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से, और खुदा जो देता है वो मिलता है मेरे रसूल अल्लाह से। बाज़ूज़ हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ूज़ हुब्बे मुहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता, खुदा को मानने वाला और मुसलमान हो नहीं सकता। इसलिए गौर फरमाइएगा, मुलाजा फरमाइएगा, खुदा का खुदाई कभी ना होती। भाई हमारा बंगाली जुबान में उर्दू बोलने जाके कहीं मुअन्नस मुज़क्कर हो भी सकता है, माफी तलब जी। खुदा का खुदाई कभी ना होती, अगर ना होते हमारे मोहम्मद, खुदा का खुदाई कभी ना होती, अगर ना होते हमारे मोहम्मद। चला था मैं दोज़ख, चला था मैं दोज़ख, तो मायूस होकर, चला था मैं दोज़ख, तो मायूस होकर, अरे बचाने को आए हमारे मोहम्मद। चला था मैं दोज़ख, शुक्रिया मौला पाक की शत करम, चला था मैं दोज़ख, तो मायूस, चला था मैं दोज़ख, तो मायूस होकर, चला था मैं दोज़ख, तो मायूस होकर, हर बचाने को आए हमारे मोहम्मद। खुदा का खुदाई तमाशा आतिश का मतलब आग, जहन्नम में जो आतिश आग है तो उसका तमाशा क्या है? वो जिसे पालेगा तो खा लेगा ना। तमाशा देखो जहन्नम की आतिश, खुदा ने जला
मोहम्मद, खुदा ने जलाया बुझाए मोहम्मद। बाबा से बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा ने जलाया बुझाए मोहम्मद, क़यामत में शान, आहा शान देखो क़यामत क्या, क़यामत में शान शफायत को देखो, क़यामत में शान शफायत को देखो, जब पकड़े खुदा को छोड़ाए मोहम्मद, खुदा का खुदाई कभी ना होती अगर ना होते हमारे मोहम्मद, खुदा का खुदाई। अल्लाहुम्मा वाला आले सल्लल्लाहु मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका व अला अहले बैतिका या रसूलल्लाह। बस और थोड़ी देर के लिए सुल्तानुल हिंद, हम तो फरोजा हैं तो हमारे शहंशाह बादशाह राजा के लिए भी हो जाओ। इसीलिए बिनाए जलवा बारी, बिनाए जलवा बारी सुल्तानुल हिंद रख दी, बिनाए जलवा बारी ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद रख दी, दियारे हिंद में किसने मदीना की ज़मीन रख दी, दियारे हिंद में किसने मदीना की ज़मीन रख दी। जमाले जात था, जमाले खुदा का जमाल उसमें जात चुकी है ना, जमाले जात था मशकूक ज़हन इरफान में, निकाब रुख उलट कर तुमने बुनियाद यकीन रख दी, बुनियाद यकीन रख दी कि जब से मैंने पकड़े हैं, कि जब से मैंने पकड़े हैं ये आली के दामन। मुशाइख भी बैठे हुए हैं, उलमाए किराम, मशाइख किराम, खुलाफाए इज़ाम तशरीफ लाए हैं, बैठे हुए हैं। बस उन लोगों के लिए मुलाजा फरमाइएगा कि जब से मैंने पकड़े हैं, जितने वली आए हैं तो मौला अली की समंदर से आए हैं। ये नहीं कि जब से मैंने पकड़े हैं ये आली के दामन, यानी जो भी मैंने पकड़ा बस सजर आली से लिखना है कि जब से मैंने पकड़े हैं ये आली के दामन, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम। मैंने अली का दामन जब पकड़ लिया तो गम क्यों करूं, क्योंकि मेरे अली शेर खुदा है और शेर खुदा का गुलाम वो बकरी नहीं बनता, वो शेर ही बनता है, चाहे बच्चा भी हो शेर का बच्चा होगा ना। कि जब से मैंने पकड़े हैं अली के दामन, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे, अरे आपको है ना, है नहीं ना, ये दुनिया की फिक्र नहीं। खामोश, मजमा पूरा खामोश बैठा। नारा हैदरी, आली के लिए हाथ उठाइए, नारा हैदरी, पाक पंजतन की एक नारा, नारा हैदरी, पाक पंजतन की। भैया कुरान में सुना है ना, हाफिज़ वाला सलावत व सलातुल उस्ता व सलावतुल उस्ता, हाफिज़ वाला सलावत व सलातुल उस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों की हिफाजत करो और बीच वाली नमाज की, नमाजो यानी सब नमाज, फिर बीच वाली नमाज क्या है, क़याम जब करोगे तो मीम की सूरत लेके खुद खड़ा हो जाओ अली, और नियत जब करोगे तो छुपी हुई पर्दा में करो, खातून जन्नत पर्दा से। दो हो गया ना। अब सजदा कौल इमाम हसन हुसैन, बीच में रह गया रुकू में आली।
सुभान अल्लाह। सिर्फ जाहिरा नहीं बातिन नहीं आता है। तो बीच वाली नमाज क्यों? अरे सब नमाज का बरबर सीखा है। जामा जब लफ्ज आ गया तो नमाजों की हिफाजत करो। हाफिजु अला सलावतुल उस्ता, हाफिजु अला सलावत व सलावतुल उस्ता, सब नमाजों की हिफाजत करो। फिर सलावतुल उस्ता बीच वाली नमाज, मतलब यानी बीच वाली नमाज जो आली है उन्हीं से बिलात निकल के आती है, उसी की हिफाजत करो जी। इसीलिए पाक पंजतन की बस एक ही नारा है, वो है हैदरी। पाक पंजतन का एक नारा, नारा हैदरी। बोलो या अली। पाक हैदरी नारा नहीं होता है, लगता नहीं सामने से आया है। पाक मेरे मुस्तफा ने फरमाया मजलिसों में जीनत बड़ा वाली की नारा से। इब्नुल मगाज़िली की हदीस मुहद्दिस साहब लिखे हैं, जो भी इस्लाम दीन इस्लाम की मजलिस बनता है ना, उस मजलिस को उसकी जीनत बढ़ाने का एक ही तरीका है, नारा हैदरी। जहां नारा हैदरी नहीं हो, मजलिस बहुत पछताएगा कल क़यामत के दिन। क्यों? सब कुछ तुम्हारा वजन हो जाएगा, आखिर में जन्नत जाने के लिए तड़प रहोगे, जाते आखिर में पूछेगा बिलायत अली है? नहीं है तो जितना गुनाह नेकी था ना, वो सब गुनाह में बदल जाएगा। और जितना गुनाह है अगर अली की बिलायत है दिल में, तो गुनाह नेकी में बदल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। पाक पंजतन का एक नारा है हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाँ, ऐसा नारा होना चाहिए। हर वक्त ये गुलाम पर, क्या बोल रहे हैं? हर वक्त ये गुलाम पर, कौन? मैं उली का जो गुलामी कर रहा हूँ, अली का दामन पकड़ के, हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं करम। क्यों? मैं ये अली के घराना है, मेरा मुर्शिद का करम। ये अली के घराना है, मेरा मुर्शिद का करम। अरे हर मुर्शिद का काम क्या है? मुरीदों के लिए, मुरीदों के लिए मुर्शिद का क्या काम है? अरे हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया, इस सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने, मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने खतरे को एक पल में समंदर बना दिया। ख्वाजा का इश्क से हमारा, ख्वाजा का इश्क से हमारा मुकद्दर सवार देता है, ख्वाजा के बुग़्ज़ से दुश्मन का चेहरा बिगाड़ देता है। जो ख्वाजा से बुग़्ज़ रखता है ना, उसका चेहरा बिगाड़ देता है। औलाद ख्वाजा के ज़िक्र को अपना ना समझ उनके, मुर्शिद की निस्बत से हमें दीदार मुस्तफा होता है। मुर्शिद की दीदार से हमें दीदार मुस्तफा होता है। इसीलिए बुआली शकलंदर अलैहि रहमत दवाने मसनवी में तहरीर की है, बाशकले शाख दीदा मुस्तफारा, ना दीदा मुस्तफारा बल्कि खुदारा। मैंने मेरा मुर्शिद की सूरत से मुस्तफा को देखा, नहीं देखा मुस्तफा को बल्कि खुदा को देखा। तो आइए इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं बांग्ला जुबान पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ओ बरज़के ख्वाजा पिया, बरज़के ख्वाजा पिया मेरा देखते रहूंगा। जो जिसका अपना मुर्शिद की दर्द सोच लीजिए। ओ बरज़के ख्वाजा पिया मेरा देखते रहूंगा, गर आएगा जा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा, गर आएगा जा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा, गर आएगा जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नारे हैदरी। ठीक है, ये बैठ जाइए। जी जी बैठ जाइए। ओ बरस के ख्वाजा पिया इरादे रहूंगा, गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा, गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। अल्लाह ने किया तुझको किया है, अल्लाह ने किया तुझको किया है, अल्लाह से तुझे ये हुस्न मिला है, अल्लाह से तुझे ये हुस्न मिला है। गम तूने दिया, गम तूने